and it is a very interesting. In the previous we have already discussed all these things: parser, top-down parser, how to top-down parser work, how to bottom-up algorithm. In a previous session we have already discussed how the recursive decision parser will be performed with backtracking, and try to understand little bit what is the meaning of a LL1 parser. The L indicate for left to right scanning, and L is the left mode derivation, and within a bracket one indicate the look ahead symbol. And the best part of this particular algorithm, it is a predictive. That means it is a earlier predict what is the outcome will be occur. So it's sometimes it's look like it is a magician. Okay, how it will earlier predict, and without backtracking, without recursion, how it will perform the operation. Okay? And it is a non-recursive decision parser also. Okay. So we have discussed here what is a LL1 parser. Have you any questions till now? Please ask if you have any questions. Otherwise, we move further. I'm audible? Yes, sir. No question. Good. No question. I think Sivendra, no? Yes. Other one, what is it? Have you any questions? Whatever we have studied till now, कि सर यहाँ पे पढ़े हैं, ये डाउट आ रहा है. कोई क्वेश्चंस है तो वो बताइए, उसको सॉल्व करते हैं. अदरवाइज आगे मूव करते हैं. किसी को कोई डाउट नहीं है? नोबडी? सबको आ रहा है समझ में अच्छे से? चलो. So here we have understand little bit in this one. The LL1 parser, it doesn't use the backtracking and doesn't use the recursion. So it is a very much interesting कि जब backtracking भी use नहीं करता, recursion भी नहीं use करता, तो how it will predict the, और सर बता रहे हैं कि LL1 parser better perform भी करता है in terms of a complexity, in terms of a computation process. इसके comparison में recursive decision parser की comparison में यहाँ पे देखिए, because it here it is use the backtracking, it is doesn't use the backtracking, okay, and it is doesn't perform the non-recursive, it is use the recursive. So ये एक काम कर रहा है कि जो earlier content है उसको predict भी कर पा रहा है और backtracking भी नहीं use कर रहा है non-recursive. That's why it is a very famous parser, the LL1 parser. When anybody told the top-down parser, the mostly introduce the LL1 parser. ठीक है, तो आज इसको समझते हैं कैसे काम करता है, how it will perform, what is the algo behind that. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करता है, input buffer, whatever input string we have a take, that particular string save here in a input buffer. Input buffer में क्या होता है, जिस string को मुझे derive करना होता है वो input string कहाँ सेव होती है, input buffer में. ये हमारा स्टैक होता है. स्टैक में क्या करते हैं, it is a one kind of a data structure. We have already familiar all these things ki what kind of a operation here we have performed. Here only two operation will be performed, push and pop. Okay, okay, so here we perform two kind of a operation, push and pop. Okay, so main thing is that ki push pop operation यहाँ पे perform कर देता है, and entry point just is one. It is a characteristic of a stack that is a topmost position. ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही एंट्री कर सकता है, वो कर सकता है. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि हाउ द LL1 parser will work. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे ये प्रिडिक्ट करता है. इट इज द होल द मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट कि कैसे प्रिडिक्ट करता है बिना रिकर्जन के. दैट इज ए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल बाय द LL1 पार्सिंग टेबल. जो LL1 पार्सर है, मेन जो उसकी फंक्शनलिटी है कि कैसे किसी भी आइटम को प्रिडिक्ट करता है, कैसे विदाउट रिकर्जन वो सॉल्व करता है. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल बाय द LL1 पार्सिंग टेबल. अब इसको थोड़ा डिटेल में आप समझते हैं आप कि LL1 पार्सिंग टेबल होता है क्या है और काम कैसे करता है. सो बिफोर द स्टडी ऑफ दिस LL1 पार्सिंग टेबल, ये दो टेक्निकल कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं. आप ये समझो कि दो टूल होते हैं जिसकी हेल्प से LL1 पार्सिंग टेबल काम करता है. द नेम ऑफ ए, मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैव construction of a LL1 parsing table, at that time we have required first and follow. Okay, I have mentioned the name here. What is the name of this one? When we have constructed this one, there are two fundamental concepts associated in the
LL1 parsing table. Okay, what is the name of this one? This is the first. Name is the first, and second is the follow. Have you anyone familiar about this one? What is the first? What is the follow? Anyone? Have you any idea how it will work? ठीक है, दो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो. तो बिफोर द स्टडी ऑफ LL1 पार्सिंग टेबल मुझे ये दो टर्म्स समझने होंगे कि फर्स्ट क्या होता है और फॉलो क्या होता है. उसके बाद हम ये सीख पाएंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द LL1 पार्सिंग टेबल और कैसे वो कंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है, तो दो फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो सीखते हैं कैसे ये फर्स्ट एंड फॉलो. आप लिखना चाहो तो लिख लो इस लाइन को, इट इज इम्पोर्टेंट कि कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 पार्सिंग टेबल. मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे करूंगा. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हाउ इट विल कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, दिस टाइम नाउ वी हैव अंडरस्टैंड कि हाउ द LL1 पार्सिंग टेबल विल. इसको ब्रैकेट में डाल दो, अच्छा लगेगा. LL1 पार्सिंग टेबल. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से पहले क्या यूज होगा इसको ध्यान से समझिएगा. अभी मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे हम लोग लर्न करेंगे व्हाट इज एल्गोरिथम एंड हाउ इट विल परफॉर्म, क्योंकि बिना उसके बताए वो समझ में नहीं आएगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ है, ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ जिससे हमें पता चले कि LL1 पार्सिंग टेबल करने के लिए मुझे फर्स्ट एंड फॉलो आना चाहिए और कहाँ उसका यूज होगा वो सीखेंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 पार्सिंग टेबल. ठीक है, and we have required two kind of a concept. The first name is first मुझे पता होना चाहिए, and what is a follow. Okay? With the help of these two particular tools we have a construct the table. So today we have a study. Okay, so what is a first, and after the understand what is a first, how we will calculate the first, then again we have moved for the what is a follow and how will we perform the follow. Okay, चलो तो फिर सीखते हैं व्हाट इज योर फर्स्ट. ठीक है, कोई डाउट है क्या शिवन? नहीं मुझे बताइए आगे. चलो अब लर्न करते हैं फर्स्ट क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद हम लर्न करते हैं. यहाँ पे मैं बोल्ड, वेरी गुड. देखो फर्स्ट होता गया, तो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ फर्स्ट ए. इफ एनीवेयर राइट लाइक दैट की FIR फर्स्ट ए है. इसका डिफिनीशन समझना आराम से ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ. ठीक है, आप बुक में भी देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसलिए प्लीज बोर्ड पे ही फोकस करिए. और क्योंकि उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में इजी बनाया हुआ है आपको समझने के लिए. क्या मतलब है? फर्स्ट ए गिव्स सेट ऑफ फर्स्ट ए गिव्स set of all the terminal, all the set of all the terminals that may begin in string. इसका मतलब समझते हैं. ठीक है, that may begin in strings derived from A. ध्यान से समझना है इसको क्या मतलब है.
if anybody write first A, that means what is the indication of this one? Give the set of all terminals that may begin in string derived from A. अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ये क्या कह रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज ए गिवन. ओके, ठीक है, मैं कोई भी डेफिनेशन बताऊंगा तो तुरंत ग्रामर लेके वहां पे क्लियर करूंगा. आपको कोई डाउट हो तो तुरंत प्लीज पूछ लीजिए उसमें, है ना. आफ्टर दैट CB एंड अगेन डिराइव. ये स्पेस लिखा नहीं जाएगा, आपका समझने के लिए मैंने स्पेस यहाँ पे दिया हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट को समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फर्स्ट A गिव द सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें क्या नहीं आएगा, नॉन टर्मिनल नहीं आएगा. सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स दैट में बिगिन इन स्ट्रिंग डिराइव फ्रॉम A. A जो हमारा सेट है, अगर कोई कहता है कि सर काइंडली कंसीडर द फर्स्ट ऑफ A, तो जितने भी स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग के क्या है टर्मिनल्स, वो एज ए फर्स्ट काउंट होंगे. कैसे? जैसे अगर इस स्ट्रिंग की मैं बात करूं, ये ग्रामर जो दिया हुआ है, और कोई मुझसे बोले कि सर कैलकुलेट करिए फर्स्ट ऑफ A. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ A क्या क्या हो सकता है? एक पहले हम यहाँ पे समझते हैं A क्या डिराइव कर रहा है. द A क्या क्या डिराइव कर रहा है? इट्स डिराइव द AB. ठीक है, इट्स डिराइव द AB. कहाँ से मिला ये मुझे? AB इस ग्रामर से. इट्स ऑल्सो डिराइव द CD. ठीक है, ये समझने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ. इसके बाद फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे. इट्स डिराइव द CD and this A also derive the E and F. Everybody can understand here. फिर मैं एक रेटिंग निकाल लेता हूँ. अगर मुझे कोई पूछता है कि सर काइंडली कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ A, यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ. मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ A. बेस्ड ऑन डेफिनेशन, इसकी क्या डेफिनेशन मिलती है कि हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? सेट ऑफ ए टर्मिनल. कौन कौन सा टर्मिनल होगा इसको थोड़ा समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ए क्या कह रहा है? गिव सेट ऑफ ए ऑल टर्मिनल दैट में बिगिन इन द स्ट्रिंग डिराइव फ्रॉम A से जितने भी डिराइव कर रहे हैं, मे बी, ठीक है, जितनी चीजें डिराइव कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्मिनल हम कंसीडर करते चले जाएंगे. तो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए क्या है, तो स्मॉल है, उसके बाद स्मॉल सी, एंड आफ्टर दैट स्मॉल ई. इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ऑफ ए, तो हम कैसे लिखेंगे? इक्वल टू सेट को कैसे दिखाते हैं? कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं. ठीक है, हमने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ था. स्मॉल ए, ठीक है, कॉमा सी, कॉमा ई. दिस इज द फर्स्ट ऑफ ए. एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड दिस वन. सबको यहाँ तक समझ में आया? Have you any doubt? If you have any doubt, any question, please ask. क्योंकि अब इसके बाद इसके रूल मैं बताऊंगा और कैसे काम करता है ये. ठीक है, anybody have any doubt? Is this clear? हाँ, शिवेंद्र, वंशिका, साक्षी. नहीं. शिवेंद्र क्लियर है. साक्षी, साक्षी is here or not? Yes, sir. हाँ, is it clear? Yes, sir. And वंशिका? Sir, clear है. Good. चलो, अभी कोई टफ नहीं है, अभी इजी है, तो क्लियर है सब कुछ. सो नाउ, ठीक है, अब थोड़ा इसका रूल समझते हैं. अभी तुमने क्या किया कि सिर्फ फर्स्ट समझा, और फर्स्ट का बेसिक मतलब क्या है. अब मैं इसका रूल समझता हूँ कि हाउ इट विल वर्क. ठीक है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट समझा. फर्स्ट क्या करता है? जितने भी वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन टर्मिनल, तो जो भी सेट ऑफ ए टर्मिनल्स ए में कंसीडर करते हैं, उसका जो फर्स्ट
टर्मिनल होता है उसको हम एज ए फर्स्ट काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वाला, फर्स्ट टर्मिनल को एज ए सेट काउंट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है। अब मैं इसके रूल सीखूंगा कि ये कैसे काम करता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सो प्लीज राइट डाउन। तो रूल फर्स्ट क्या है? देखिए, जो मैं रूल बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल है, तो प्लीज इसको कॉपी पेन पे लिखते रहिए। हो सकता है जो नोट्स भी मैं शेयर किया हूँ उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हो या समथिंग, बट यहाँ पे मैंने उसको मैं इजी करता हूँ कि आपके समझ में डायरेक्टली कैसे आए। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज ए एप्सिलॉन, ठीक है, I change the color. Okay, if a this one, if a is a epsilon, ठीक है, अगर ऐसा है, if a is the epsilon, हाँ, if a is the epsilon, then what is your first? If a is a epsilon, then first of a is equal to epsilon. Is it clear? ये फर्स्ट रूल हुआ। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो मैं a का डेरिवेशन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्या था, ए बी सी डी ई एफ, मे बी ये सब कुछ नहीं होता, और a डिराइव टू क्या है, एप्सिलॉन है। एनीबडी आस्क व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ए, तो जो एप्सिलॉन है तो वहाँ पे एप्सिलॉन ही एज ए फर्स्ट हो जाएगा उसका आंसर। ओके, सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल। अब इसमें ये भी तो हो सकता है कि सर यहाँ पे टर्मिनल ना आके क्या हो जाए, नॉन टर्मिनल आए, उस केस में क्या करते हैं, तो समझते हैं उस केस में क्या करते हैं। दिस इज द रूल नंबर 1। इट इज अ वेरी सिंपल रूल बट वेरी हेल्पफुल व्हेन वी हैव अप्लाई इन द एंड रूल नंबर 2। व्हाट इज रूल नंबर 2? इफ a is a terminal, what is your answer, Sakshi? If a is a terminal, what is your answer? I think first of a, सर अगर उसके फर्स्ट एलिमेंट वो देगा, फिर अगर ये टर्मिनल है तो टर्मिनल का मतलब वो कोई डेरिवेशन ही नहीं दे रहा ना, आप समझ पा अच्छा, रहे ये हो? डेरिवेशन ही नहीं दे रहा है कोई। नॉन टर्मिनल हमेशा डेरिवेशन देता है, ठीक है। ए Yes, टर्मिनल, sir. समझ रहा Yes, ना, sir. नॉन Yes. टर्मिनल दैट मीन इट इज डिराइव समथिंग। ओके, टर्मिनल के केस में अगर ऐसा है, देखो यहाँ एक सर चीज अगर ए टर्मिनल हो जाए सर, फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर नन। नहीं लिखेंगे ना, देखो ए लिखेंगे, इस चीज को समझो। मे बी अगर ए, देखो नॉर्मली हम टर्मिनल को कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल से लिखा है, ध्यान से समझो। तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो रूल है, अगर कहीं पे भी हमें टर्मिनल दिखेगा, जैसे ये स्मॉल सी ए सी ई लिखा है ना, इसका मतलब ये टर्मिनल है। बट नॉर्मली नॉन टर्मिनल को हम इससे दिखाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी हमें जो कैपिटल है उसको टर्मिनल दिखाना है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे उसको। इज इट क्लियर? इसीलिए हमने क्या लिखा, ए इज क्या है, टर्मिनल है। नॉर्मली टर्मिनल को कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती कि ये टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है। ये चीज समझ पा रहे हैं सब लोग? सर मतलब जैसे ऊपर टर्मिनल तो सर एग्जांपल में डेरिवेशन आपने देते ही नहीं है ना सर, ऊपर जो ए सी ई लिखा है तो वो नहीं हाँ, हाँ। लिखेंगे टर्मिनल्स, ए लिखेंगे, कैपिटल ए। नहीं ये रुक जाओ, कंफ्यूज सर। ये कह रही सर, रुक जाओ एक सेकंड। टर्मिनल्स ये एक अलग एग्जांपल है, समझ गए? ये इसके नीचे रूल है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। यहाँ पे ऐसे समझो कि, चलो मैं यहाँ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए है, ये एक रूल दिया हुआ है, इफ ए डिराइव्स टू एप्सिलॉन, सिर्फ इतना है, ऊपर का एग्जांपल छोड़ दीजिए, वो अलग है। इफ ए डिराइव्स टू एप्सिलॉन, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस ना, सर। फर्स्ट क्लियर हो गया, गुड। अब ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्शन जो ये डिराइव कर रहा है, मे बी ए को ही डिराइव कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ए कैपिटल ए को ही, सर यही तो पूछ रहे सर कि हाँ, मतलब
टर्मिनल सर कहाँ डिराइव करते हैं? टर्मिनल डिराइव नहीं करते टर्मिनल हैं। तो डिराइव एग्जैक्ट करते ही नहीं है। टर्मिनल को तो टर्मिनल का मतलब ये हुआ कि वहां से वो टर्मिनेट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, टर्मिनल का मतलब ये हो फिर गया। क्यों ऐसा ले रहे हैं फिर अरे हम? बता रहे हैं टर्मिनल को डिराइव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या करना है कि मतलब मे भी अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे तो मुझे फर्स्ट ऑफ ए निकालिए, और जो ए क्या है यहाँ पे ए क्या नॉर्मली के ए क्या होता है, ए कैपिटल क्या होता है, वो वेरिएबल होता है अगर मैं कैपिटल में लिखा, नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, बट अगर ये टर्मिनल है तो क्या होगा, एज इट इज फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। अभी रुक जाओ, अच्छा अभी ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। अभी के लिए अभी एज ए रूल समझो, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर आप समझेंगे इसको। ठीक है, अगर टर्मिनल है तो एज इट इज जो फर्स्ट है वो ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लेते हैं, इफ ए इज ए वेरिएबल। ठीक है, जो थर्ड रूल आता है हमारा, ए इज ए क्या है, टर्मिनल नहीं। टर्मिनल है तो सीधे सीधे देखो, एप्सिलॉन है तो डायरेक्ट एप्सिलॉन फर्स्ट हो जाएगा। अगर ए टर्मिनल है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए टर्मिनल वाला फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा। बट व्हाट इज ये मोस्ट इंटरेस्टिंग कि मैं जिसको ले रहा हूँ वो क्या है, टर्मिनल नहीं है। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इफ ए इज ए वेरिएबल, आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे कैपिटल लेटर में लिखा तो हमें पता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ ए इज ए वेरिएबल है तो क्या करेंगे, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अभी बंद नहीं करते इसको। ए इज ए वेरिएबल, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ। If A is a variable, what is the meaning of A? This one, capital A derived to capital A derived x1 x2 and x3। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अगर मैं फर्स्ट ऑफ ए ले रहा हूँ और वो क्या है x1 x2 x3 and x1 again derive something because it is a variable और नॉन टर्मिनल। क्या ये डिराइव कर रहा है, स्मॉल a ठीक है, b after epsilon एंड x2 क्या डिराइव कर रहा है, x3 डिराइव टू c and d। ओके, सी डी एप्सिलॉन। फिर हम बात करते हैं x3 भी हमारा वेरिएबल है। x3 डिराइव कर रहा है e एप्सिलॉन। ओके, अब हम यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉलो नहीं फर्स्ट यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि वेरिएबल के केस में क्या है। डिफिनेशन सेम है सबके लिए। क्या करना है, कोई भी हमसे पूछे व्हाट इज ए फर्स्ट, इट इज ए सेट ऑफ ए टर्मिनल जो कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्मिनल क्या डिराइव कर रहा है उसी को फर्स्ट बोलते हैं हम। ठीक, अब इसको सीखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, सर फर्स्ट ऑफ ए बता दीजिए आप। ध्यान से समझो कैसे करते हैं, मैं एक पूरा सॉल्व कर रहा हूँ फिर आप बताइएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ए में क्या क्या आएगा, क्योंकि ये वन आप सफिक्स में लगाइएगा। रुको अच्छा मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आधे लोग गलत लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे
मैंने लिया x1 जो फर्स्ट ऑफ है a, ठीक है, x2। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार समझ लो फिर आराम से आप सॉल्व कर लो। x2 एंड हियर वी हैव राइट द x3। ठीक, अब इसको समझेंगे कैसे ये सॉल्व करते हैं। हमें निकालना था फर्स्ट ऑफ ए, अगर ये टर्मिनल होता तो क्या हो जाता, जो ठीक है डायरेक्ट x1 क्या हो जाता, अगर ये टर्मिनल होता तो, वेरिएबल नहीं होता तो क्या होता, फर्स्ट ऑफ ए हो जाता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बाय एवरीवन? यस ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या होता, टर्मिनल होता तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ए x1 हो जाता। बट हियर इज अ मोर इंटरेस्टिंग, ये x1 भी कुछ डिराइव कर रहा है, x2 भी डिराइव कर रहा है, x3 भी कुछ डिराइव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी केस में क्या होगा, जो इसका फर्स्ट होगा इनिशियल में, हम उसको फर्स्ट ऑफ ए x1 ले लेंगे। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैसे ये होगा। तो इस पूरे प्रोडक्शन उन्होंने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट ऑफ ए x1, फर्स्ट ऑफ ए x1। अब चलो फर्स्ट ऑफ ए x1 निकालिए। फर्स्ट ऑफ ए x1 क्या है बताओ कोई? सर ए कॉमा बी। हाँ a कॉमा बी, वेरी गुड। एंड एप्सिलॉन भी तो है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो Yes, एक sir, मिनट, epsilon देखो देखो है। देखो देखो यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, एक रूल मैंने बताया था, इफ a इज एप्सिलॉन, तो यहाँ पे x क्या है, एप्सिलॉन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है ये रूल क्यों बताए थे? अब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या क्या हो गया बताओ कोई? बी सर एप्सिलॉन ए कॉमा बी नहीं कॉमा नहीं, एप्सिलॉन। ए भी तो है, बी एप्सिलॉन तो है ही है। ए बी A, ए B, कॉमा बी ये सर, तीनों A, अलग है B, ना, एप्सिलॉन। देखो ये जो लाइन ऐसे खींचते बेटा, इसका मतलब है अलग अलग है प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। सबको ये चीज समझ में आ रही है, ए बी एप्सिलॉन? या किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट का है एप्सिलॉन, वो हम पहुंच गए ए बी एप्सिलॉन। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, इसको मैं पूरा करूंगा फिर आपको समझ में आएगा ये कैसे कर रहे हैं सब। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक स्टेप इसीलिए लिख रहा हूँ, आप ऐसे दो एरो कर लो, एक एरो से क्या थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, कि इसका प्रोडक्शन क्या मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ए। ठीक है, किसी को ये डाउट है कि ए बी एप्सिलॉन कैसे मिल गया? हाँ, हैव यू एनी डाउट कि ए बी एप्सिलॉन कैसे मिल रहा है? सबको क्लियर है? आप सबसे एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पे, इसके साथ कैसे क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये फर्स्ट निकालना था। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ये, हम यहाँ पे ए पुट कर देंगे, एक बार ए पुट कर सकते हैं ना x1 की वैल्यू, एक बार बी कर सकते हैं कि नहीं? फिर जब मैं एप्सिलॉन पुट करूंगा तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन पुट कर दूंगा तो फर्स्ट ऑफ है x1 x2 x3 में फर्स्ट क्या हो जाएगा बताओ? अगर इफ हियर वी हैव पुट द एप्सिलॉन, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, x2। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ है x2 मिल जाएगा मुझे। सबको ये बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे एप्सिलॉन आ रहा है और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए टर्मिनल, तो एप्सिलॉन तो क्या होता है पता ही ना सबको, एप्सिलॉन क्या होता है? ठीक है, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी x2 फिर मिल जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ है x2। इज इट क्लियर? चलो मैं लिख रहा हूँ फिर आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट मीन माइनस, अगर मैं एप्सिलॉन वहां पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा यूनियन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ x2 माइनस x3। अभी 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इजी लगने लगेगा, अभी फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, टफ नहीं है, इजी है ये। ठीक है, x2 माइनस x3। चलो अब ये मिल गया, ये मिल गया, अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको। सर ये माइनस एप्सिलॉन क्यों लिखा है सर, ए कॉमा बी कॉमा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन? यस 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 यस, देखो हम एक ऐसे अप्रोच ये समझो अभी के लिए, अभी आगे बताएंगे कि ये क्या होता है।
मैं एप्सिलॉन को इग्नोर करूंगा, मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में ले जाके क्या करूंगा, एप्सिलॉन को लूंगा, क्योंकि एप्सिलॉन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो इसमें बेस्ट अप्रोच होता है, जैसे मतलब अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पहले ये ट्राई करूंगा कि फर्स्ट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो एप्सिलॉन मुझे नहीं लेना पड़े, मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन को लूंगा, क्योंकि एप्सिलॉन से मुझे फायदा नहीं है, मैं उसके फर्स्ट से कोई भी एज ए टर्मिनल काउंट तो कर ले रहा हूँ रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से, बट मेरा अप्रोच क्या होगा, क्यों ये अप्रोच होगा, अभी बात करेंगे आपसे, ठीक है, अभी आगे इसका एप्लीकेशन आएगा। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि एप्सिलॉन जो है, तो मैं पहले चाहता तो मैं यहाँ पे ए बी एप्सिलॉन लेके आंसर क्लोज कर देता, ठीक है, बट हमारा अप्रोच क्या है कि मैं चाहता हूँ कि एप्सिलॉन नहीं लेना पड़े मुझे, ठीक, एप्सिलॉन नहीं लेना पड़े तो क्या करना है, एप्सिलॉन हम पुट किए यहाँ पे, इज इट क्लियर, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पुट किया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मुझे मिला कहाँ से, मैंने देखा कि एक्स का प्रोडक्शन है, तो ए भी तो ठीक है, बट मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ, मुझे एप्सिलॉन नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन पुट किया, तो एप्सिलॉन पुट करने के बाद मेरा फर्स्ट क्या बन गया, x2 x3, इज इट क्लियर, ठीक, फिर अगेन मैं x2 का निकालूंगा, x2 पे मुझे क्या मिल जाएगा, c मिलेगा, d मिलेगा, c d तो ठीक है, अगेन एप्सिलॉन मिल गया, तो मैं अगेन क्या चाहूंगा कि एप्सिलॉन को मुझे इग्नोर करना है, मैं फिर से यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दूंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ, फिर से अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एप्सिलॉन पुट कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एप्सिलॉन मुझे नहीं चाहिए, एप्सिलॉन नहीं चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ दिस वन क्या हो गया, x3, x3 का क्या प्रोडक्शन दे रहा है, E दे रहा है, F दे रहा है, एप्सिलॉन दे रहा है, अभी भी मैंने चाहता कि मुझे एप्सिलॉन चाहिए, ठीक है, फिर मैं एप्सिलॉन फिर से पुट कर दिया, यहाँ पे फिर से पुट कर दिया, लेकिन ये तीनों एप्सिलॉन होने के बाद भी ये फिर से यहाँ पे क्या प्रोडक्शन मिलेगा, फर्स्ट हाफ एप्सिलॉन, अब मेरी मजबूरी है, मैं चाहता तो नहीं हूँ, बट क्योंकि प्रोडक्शन डिराइव ही एप्सिलॉन कर रहा है, इसलिए मुझे, ठीक है, एप्सिलॉन लेना होगा, अब कोई सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो एक चीज अभी से ध्यान से समझो, फर्स्ट जब व्हेनेवर वी हैव ए कैलकुलेटेड द फर्स्ट, तो मेरा ध्यान ये होगा कि मुझे वर्स्ट कंडीशन में मैं पहले इग्नोर करूंगा कि एप्सिलॉन नहीं लेना पड़े, जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तभी मैं एप्सिलॉन लूंगा। सेकेंड थिंग, अभी मैं इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा फॉलो, नेक्स्ट क्लास में, फॉलो में तो एप्सिलॉन लेते ही नहीं है कभी भी जब मैं फॉलो लूंगा तो एप्सिलॉन उसमें कंसीडर नहीं करेंगे, एमंग वर्स्ट केस में भी नहीं करेंगे, उसके लिए अलग रूल है कि ऐसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि आगे ये कैसे सॉल्व करते हैं, ओके, चलो फिर अगेन हियर वी हैव फाइंड आउट कि हमारे पास क्या मिल रहा है, x2, अगेन वी हैव फाइंड द फर्स्ट ऑफ x2, फर्स्ट ऑफ x2 का मतलब आ गया हमारे पास, फर्स्ट ऑफ x2 x3, तो यहाँ पे क्या मिल गया बताओ, यहाँ पे मिल गया हमारे पास फर्स्ट ऑफ x2, इज इट क्लियर, फर्स्ट ऑफ x2 मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, हियर वी फाइंड द फर्स्ट ऑफ x2, देन क्लोज, अच्छा फर्स्ट ऑफ x2 क्या दे रहा है मुझे, यहाँ पे देखो, तो CD एप्सिलॉन, यस CD एप्सिलॉन, वेरी गुड, CD एप्सिलॉन दे रहा है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर कि सर इट्स गिव द, ऐसे करके इट्स गिव द C, स्मॉल c, एंड आफ्टर दैट D, उसके बाद एप्सिलॉन भी दे रहा है, एप्सिलॉन के लिए मैंने क्या बताया, अगर हमें एप्सिलॉन मिले, एप्सिलॉन को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन एक बार हमने यहाँ पे ले लिया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका माइनस कर रहे हैं, एप्सिलॉन मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं मिले, फिर मैं सेम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे दो एप्सिलॉन पुट करूँगा, x1 और x2 की वैल्यू, तो मुझे फर्स्ट ऑफ क्या मिल जाएगा, x3, इज इट क्लियर बाय एवरीवन, अभी यही चीज मैंने ओरली बताया आपको, अब मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ उसको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ओरल बताने लगेंगे आप, इसको सॉल्व करने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद व्हाट इज ए वैल्यू हियर वी हैव x3 के केस में, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या, यहाँ पे मुझे मिलेगा, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन ऊपर चला गया, हाँ
यहाँ पे मुझे मिलेगा E, ठीक है, एंड F, और फिर क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। अब मैं तीनों एप्सिलॉन रखूंगा तो लास्ट में क्या मिल जाएगा मुझे, एप्सिलॉन लेना यहाँ पे मेरे लिए मजबूरी है वर्स्ट केस में भी। अगर मैं अब आंसर की बात करता हूँ, सर जो फर्स्ट ऑफ ए हम कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट तो फर्स्ट ऑफ ए कर रहे थे ना, देखो कोई मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है फाइनली। अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ए, व्हाट इज आंसर। एक चीज ध्यान रखो, जो भी इसमें सेट होता है, ये सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये नोटेशन है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं कि ABC लिख के इसे छोड़ देंगे, ये पूरी मैथमेटिक्स है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ मुझे आंसर। कौन, वैशाली, सॉरी वंशिका, यस, व्हाट इज आंसर, AB, क्योंकि एप्सिलॉन हम पहले रिमूव करेंगे, ठीक है, AB हो जाएगा। सर ABCDEF ये चारों होंगे। यस 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 यस, ABCDEF, और लास्ट में एप्सिलॉन लेना ही होगा ना मुझे, तो एप्सिलॉन फिर लेना होगा। Yes, sir. ना, ठीक है। एप्सिलॉन मैं चाहता तो हूँ नहीं लेना, बट वर्स्ट केस में क्या होगा, ABCDEF एप्सिलॉन। ओके, इज इट क्लियर बाय एवरीवन। ठीक, तो यहाँ पे जो सेट का वो बनेगा, चलो मैं लिख देता हूँ। तो हमारा आंसर हो गया ए, बी, स्मॉल सी, ये कॉमा है, कॉमा है, ठीक है, ABC, ठीक है, फिर हमारे पास C के बाद D मिल जाएगा, G के बाद E हो जाएगा, एंड आफ्टर द E हमारे पास F आएगा। और यहाँ पे हम लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन में लेना तो नहीं चाह रहा था, बट एप्सिलॉन आ भी रहा है, ठीक है, तो ये हम एप्सिलॉन क्लोज कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेट हो गया यहाँ से, क्लियर है। इज इट क्लियर। तो मैं एक बार देख लो, रिकॉल कर लो फिर। सर इसमें जो लास्ट वाली x3 की जो डेराइव है E, F और एप्सिलॉन, अगर इस लास्ट वाले में एप्सिलॉन नहीं होता तो हमारे फाइनल आंसर में एप्सिलॉन एग्जैक्टली, नहीं आता ना। ये राइट राइट राइट, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होता, वंडरफुल क्वेश्चंस। देखो, अच्छा व्हाट्स योर गुड नेम। सर प्रतिभा। हाँ, प्रतिभा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर लास्ट वाले में फॉर एग्जांपल ये होता ही नहीं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन होता, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती, ये नहीं होता, समझ पा रहे हैं, और यहाँ पे भी ये भी एप्सिलॉन नहीं होता। इज इट क्लियर। तो हमारा आंसर क्या जाता, ग्रामर में एप्सिलॉन होने के बाद भी, ठीक है, यही तो अप्रोच है ना कि मुझे एप्सिलॉन नहीं लेना पड़े, ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ई हो रहा है। इज इट क्लियर बाय एवरीवन, समझ में आया। अभी हटा देते, नहीं तो लोग उसमें भी काट पीट देंगे, दोनों हो गए। ठीक है, समझ में आ गया ये। अभी और न्यूमेरिकल इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो एक बार रिकॉल कर लो आप, ठीक है, कोई डाउट हो तो भी पूछ लो। एक बार पूरे शो कर दीजिएगा और समझ सर एक में बार स्टेप दिखाइए सर, यस, ऊपर का स्टेप दिखा दीजिए। ऊपर का स्टेप दिखा दें, ओके, चलो मैं देखता हूँ ये डाउनलोड होने का कोई ऑप्शन अगर दिखता है इसमें, इसीलिए साथ साथ में लिखते रहिए। रुको मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ, मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ कि दिखता रहे। हाँ, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे आ गया नीचे। ये हम लोगों ने पढ़ाई की थी, फर्स्ट एंड फॉलो, ठीक है, लिख लो। लिख रहे हैं क्या अभी आप, नोट डाउन कर रहे हैं, कर लीजिए।
सर नीचे कर दीजिए सर। हाँ नीचे करता है। अच्छे से इसको लिख लो, हाँ इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया अच्छे से। हो सकता है बुक में आप देखेंगे तो ऐसे इसको सही कर देता है। ये अभी के लिए रहने दो, जो रेड कलर का था ना, यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लीजिए आप। अभी ये क्वेश्चन था इसलिए चेंज किया मैं। ये करो फिर और क्वेश्चंस आपको देते हैं। साइज बढ़ाने की जरूरत है, इट इज ए विजुअल। आप अपने स्क्रीन का बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे साइज करें ना वो बड़ा हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल एक साथ नहीं आएंगे। आप अपनी स्क्रीन का बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो? बाकी लोग नोट डाउन कर रहे हैं, तो जिसको डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फॉलो दोनों मुझे अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि जब मैं टेबल वो LL1 पार्शियल टेबल का कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो आप ये समझिए कि फिर फर्स्ट एंड फॉलो नहीं बताऊंगा, फिर टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उनमें इनका यूज होगा। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज और ध्यान रखो, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ एनी ग्रामर एसोसिएटेड विद, फॉर एग्जांपल लेफ्ट रिकर्सन दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस रूल नॉट बी अप्लाइड ड्यू टू द इनफाइनाइट रूल। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी ग्रामर में क्या हुआ, ए डिराइव टू कैपिटल ए, ठीक है, एंड BC दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है और फिर भी मैं उसमें फर्स्ट अप्लाई किया जा रहा हूँ, क्योंकि वो क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप की तरफ टेंस हो जाएगा। ओके, तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि लेफ्ट रिकर्सन रिफैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, तब मैं जाके फर्स्ट एंड फॉलो को अप्लाई करूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है। बिफोर अप्लाइंग टू एनीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टैंड कि वो लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए। ओके, फिर हम फर्स्ट एंड फॉलो किसी भी, क्योंकि देखो जब टॉप डाउन पार्शियल में डायग्राम हायरार्की बनाया था, तो वी हैव मेंशन इन द अबव टॉप पोजीशन कि देयर इज ए नो लेफ्ट रिकर्सन नो लेफ्ट फैक्टरिंग। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। अगर किसी ग्रामर में है और कोई मुझसे कह रहा है, तो पता चला मैं निकालते चला जा रहा हूँ, वो निकलते चला जा रहा है, ठीक है, लूप की एंडिंग ही नहीं हो रही है, तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि लेफ्ट रिकर्सन तो नहीं है उसमें। ओके, ठीक है। आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अटेंडेंस ले लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे आपको, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों अच्छे से आने चाहिए ना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये AKTU में भी, कि कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो। 5 मार्क्स के और कभी कभी बड़े क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के। तो सिर्फ अगर आप इतना सीख गए फर्स्ट एंड फॉलो, तो समझिए कि 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम आपने आ गया। ठीक, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ एसोसिएट करेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एंड फॉलो, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। अदरवाइज कोई एक ग्रामर देगा और उसके बाद डायरेक्टली पूछ लेगा कि व्हाट इज ए फर्स्ट एंड फॉलो। ओके, कोई डाउट हो तो पूछो बाकी लोगों को, प्लीज आस्क। हैव यू एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क। ओके, कोई डाउट हेजिटेशन की बात नहीं है, नहीं आ रहा है सीधे पूछो, जो नहीं आ रहा है बता दीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी की कोई बात नहीं है, ठीक है, आप पूछेंगे मैं बता दूंगा उसको। और थोड़ा प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि टेस्ट भी होगा, टेस्ट में कभी भी ले सकता हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन करिए। टेस्ट नॉट ओनली कि आप मैं यहाँ से क्वेश्चन दे दूंगा और आप वहाँ सॉल्व करके भेज देंगे, टेस्ट भी होगा, साथ में वाइवा भी होगा कि आपने कैसे इसको लिख दिया। ओके, तो प्लीज़ दोनों पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं करना है। मैं सरप्राइज टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ के आइए, ठीक। तो जितना आप तक पढ़ाया गया पूरा पढ़ते रहो, कभी भी किसी से भी टेस्ट और एग्जाम हो सकता है, ठीक है, इस वीक में भी नेक्स्ट वीक में भी। अभी टाइम है, या टेस्ट की टाइमिंग बताओ कब देना चाहते हो, ऐसा करना चाहोगे? आप ही डिसाइड कर दीजिए। मैं ही डिसाइड कर लूँ। चलो अभी पढ़ते रहो, जब देना होगा मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अभी पढ़ते रहो, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन दिया, आपने सॉल्व किया आधे घंटे के अंदर, फिर मैं पूछूंगा अभी आपसे कि आपने कैसे सॉल्व किया, और जिससे मुझे पता चल जाए ना कि आपने खुद कर रहे हो कि कहाँ से।
और वो एज ए इंटरनल, ठीक है, एज ए इंटरनल मार्क्स भी काउंटेबल है, और क्योंकि अगर वहां तक समझ नहीं आएगा तो आगे की जो चीजें ना वो भी नहीं क्लियर हो पाएंगे। चलो अटेंडेंस आपका ले लेते हैं, एंड आई थिंक अच्छा कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं आ रहे हैं, रुको मैं अभी नाम ले लेता हूँ उनका, एक सेकंड। उनका नाम है एक विशेश्वर ऐसे करके कुछ नाम था। नहीं मैं बता रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ, एक सेकंड। मैंने कल उनको देखा था कि उनका कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। उनका नाम बता देते हैं जो क्लास में नहीं आ रहा है। नहीं आने का मतलब जो एकदम नहीं आ रहा है। एक तो है एक प्रथम जिंदल, ठीक है, बट थोड़ी सी अटेंडेंस बेटा मेंटेन और करो। प्रथम है क्या यहाँ पे लाइन पे? प्रथम जिंदल। हाँ सर। हाँ बेटा क्लास वास कर रहे हो? हाँ सर कर, थोड़ा सा और करो। हाँ ठीक चल रहा है आपका, ऐसा नहीं, गड़बड़ नहीं है। एंड शिवम, सिंगल शिवम, हाँ उनके कोई सरनेम नहीं है। शिवम आप क्लास करते हैं डेली? एंड सबसे इम्पोर्टेंट विश्वेंदर आते हैं कभी? विश्वेंदर है अभी क्लास में? विश्वेंदर, इनकी 0 अटेंडेंस है, ये कभी नहीं आए। उसके बाद प्रतीक आर्या, इनकी 0 अटेंडेंस है। उसके बाद सत्यम, सिंगल से देयर इज नो सरनेम। सत्यम क्लास में है सत्यम क्या? आई थिंक नहीं। तो इन लोग नहीं। हाँ तो 2-3, चलो ठीक है, टाइमिंग हो गया। तो ये 2-3 लोग हैं बेटा बस, जैसे सत्यम हो गए जिनकी ज्यादा गड़बड़ है, प्रतीक आर्या इनकी 0 है, एंड विश्वेंदर, मतलब 1 2 3 3 लोग हैं जिनकी 0 अटेंडेंस है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या नहीं आ रहा है। हाँ पढ़ाई करो, बाकी ठीक है, बाकी लोगों का अटेंडेंस ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत करिए, जिनके 1-2 लोगों का और मैंने नाम लिया है, तो एटलीस्ट 75 का जो क्राइटेरिया है वो आप बना के रखो, और 100 करके रखो, सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है। 75 क्या है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है, ओके बाय। टाइम हो गया आपका। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।